Hello students, how are you? Now today this is my second session in the chapter metals and non-metals, and today we are going to learn about the chemical properties of metals and non-metals. And in our previous session we have already studied about the physical properties of metals and non-metals. We have seen the exceptional cases which are very important to learn. So my dear students, please keep in your mind those important points. And today in this session, what are the objectives? See here, we will learn about the chemical properties of metals. In this section we will learn the reaction of metal with air, reaction of metal with water, reaction of metal with acids. So these three points will be discussed today, and we will see the various reactions of metal with air, water, and with acids. Some important points will be focused, which are very important for board examination point of view. In CBSE board examination, generally those questions are asked. I will give emphasis on those points also. And about the displacement reaction and reactivity series, I am not going to take in this session. For next session I will take about this reaction, and especially about the reactivity series of metals, and how the bonding between metal and non-metal take place. So now I am going to start the today's session. All of you should get ready with your notebook, and when it is required, please pause the video and write it in your notebook also. So now the first topic, reaction of metal with air. Air means what? It is a mixture of gases. My dear students, when we talk about air, it means metal reacts with air. It means how does metal combined with, how does metal react with oxygen, and when it combined with oxygen, then what is the main product which is obtained. So before going to that point, let us see what happens when a metal is burnt in presence of air. Suppose here it is seen, it is shown that in tongue a metal strip is taken and it is burnt in a flame. And have you seen this activity number 2 in your previous classes, or we have already discussed in the first chapter, and that was the first activity, burning of magnesium ribbon. Now here, which is encircled by me, this is the magnesium ribbon. When it is burnt in presence of air, what do you observe? Dazzling flame. वो डेजलिंग फ्लेम के साथ, वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, एंड एज अ प्रोडक्ट व्हाट डू वी गेट? वाइट पाउडर. दिस इज द वाइट पाउडर, एंड दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज इट क्लियर? आपको याद आ रहा है बच्चों कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो क्या बनता है? वाइट पाउडर बनता है, एंड दैट वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो व्हाट कंक्लूजन डू वी गेट फ्रॉम हियर? Almost we can say that all metals react with air not in the same manner. They have a different manner they react, but the product is metal oxide. When metal combined with oxygen, then metal oxides are formed. So we can say metal plus oxygen. Here it is not the sign of integration, but arrow mark will be there. मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो बच्चों इस चीज़ को याद रखना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज बर्न्ड और कॉपर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, और वी कैन से व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर. So when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide. This is copper 2 oxide. Why I have written 2 in Roman? It means valency is 2. कॉपर की वैलेंसी यहाँ कितनी है? 2 है. एक्चुअल में कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है बच्चों. इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 भी है, 2 भी है. इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी. उसी तरीके से आयरन की वैलेंसी 2 होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है. उसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है और आपको उसकी जानकारी है. सो नाउ this reaction which is shown here, in this reaction copper oxide is formed,
And what is the color of copper oxide? Just remember, try to rememberize that point. You have studied in about oxidation and reduction reaction. It is black in color. सबको याद आ गया? Okay. So now this reaction is already balanced. Now again think what happens when aluminium is heated in air. So aluminium symbol is Al. Heated in air means it combines with oxygen, O2. Just try to write simple reaction. Aluminium oxide is formed. So what is the chemical formula of aluminium oxide? अब आपको अगर मैंने शुरू में ही कहा था, if you are going through the practice of writing chemical formula, all the 3-4 chapters will be very easy in 10th class. Otherwise, every point, everywhere you will feel that you are facing problem to write chemical formula. So what is the formula of aluminium oxide? Al2O3. Is it clear? अब aluminium oxide का formula Al2O3 हो गया. I have already taken a last session for writing how to write a chemical formula and balance a chemical equation. So now this equation is not balanced. As you can see, aluminium in reactant side having one number or 1 mole, in product side it is 2 atoms. You can say 2 atoms, here 1 atoms, 1 mole, 2 mole, like that. So now what will you do? In order to balance aluminium, first of all balance the oxygen, because the number of oxygen atom is 3 and 2, odd and even. So multiply here by 2 and multiply here by 3. So oxygen is 2 3 is 6, 3 2 is 6, balance. So what about the aluminium? Now aluminium has become 4. So multiply here by 4. So this is the balance reaction. तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस वे में नहीं लिखना है या बुक से याद नहीं करना है. आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है और देन ट्राई टू बैलेंस इट. सो इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंस? मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सबको समझ में आ गया? ओके. सो नाउ अगेन द सेम रिएक्शन इज रिटन हियर. व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? जो मेटल का ऑक्साइड बनता है उसका नेचर कैसे होता है? यू कैन सी हियर इट इज रिटन बेसिक इन नेचर. वो बेसिक नेचर का होता है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको इसका टेस्टिंग करना होगा कि वो बेसिक नेचर का है कैसे है, क्योंकि जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? या तो ये ऑक्साइड आपको एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, या इस ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिजोल्व करके देख लो हाइड्रोक्साइड बनता है कि नहीं, और उसका आप किसके साथ टेस्ट करोगे? लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे, किसी ना किसी इंडिकेटर का यूज़ करोगे. सो जस्ट गो थ्रू दो सिंपल टेस्ट, स्टडी अबाउट द सिंपल टेस्ट. 2 तरह के लिटमस पेपर आपने देखे हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर. ओके. व्हाट हैपेंस? रेड लिटमस पेपर अगर आप लेते हो और उसको अगर एसिड के साथ आप टेस्टिंग करते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बेस के साथ करोगे वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में. याद रखना. अगर ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो वो एसिड के साथ क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड हो जाएगा. अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो जब वो बेसिक इन नेचर है तो व्हाट टाइप ऑफ लिटमस पेपर शुड बी टेकन? ऑब्वियसली हम रेड लिटमस पेपर ले लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि वो ब्लू कलर में चेंज होता या नहीं होता है. तो क्या करना है? देखो, आप मेटल ऑक्साइड लो, उसका सॉल्यूशन तैयार करो, उसमें रेड लिटमस पेपर यहाँ पे डिप करो एंड यू कैन सी हियर द कलर इज चेंज इनटू ब्लू. कलर किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया. कैन सी हियर. देन दिस शोज दैट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके. Again you can see here for acid and base both. In acid what happens? एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस है वो रेड में देखो चेंज हो रहा है. बेस में क्या होता है? रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो रहा है? ब्लू में चेंज हो रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन. जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़ा है आपने. एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो 2nd चैप्टर है उसमें आप और भी इंडिकेटर्स फिनोल्फ्थलीन का नाम जानते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है. ओके. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? ओके. सो नाउ
We are moving to further next point, and that is a very important topic, amphoteric oxide. It is very important. I am writing a very important VVI important points. Generally it is asked in the board examination. Amphoteric oxides क्या होते हैं? My dear students, just we have studied that metallic oxides are basic in nature. It means they will react with acid to form salt. But there are some oxides of metal which react with acids as well as bases to produce salt and water, and such oxides are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जो ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. जस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन. metallic oxides which react with both acid as well as base is called amphoteric oxide. Is it clear? And just you can see example, aluminium oxide. Now Al2O3, it is written twice. It reacts with, in the first case it reacts with HCl. In the second case it reacts with NaOH. HCl is acid, NaOH is base. So what are the products? Just you have to guess. Aluminium react with HCl, so aluminium chloride is formed, or salt is formed. There is hydrogen and here is oxygen, so H2 water will be formed. So the next product is water. This reaction is not balanced. You have to balance it. हमने यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं दिया. In the second case what is formed? जो सेकंड केस है जहाँ देख लीजिए, अब सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2. AlO2 एक रेडिकल है जिसको एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, इसकी वैलेंसी 1 होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl एज वेल एज NaOH. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा. समझ में आ गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में बच्चों पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है. गिव एन एग्जांपल. आपको ऑक्साइड लिखना है, कभी भी एल्यूमिनियम और जिंक मत लिखना. यू हैव टू राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एज द वर्ड इंक्लूड्स ऑक्साइड्स. सो नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. इसको बैलेंस करो. एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ कितनी है? राइट साइड में प्रोडक्ट में इट इज़ 1, लेफ्ट साइड में 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2AlCl3 हो गया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर देखो 3 2 6 हो गया. यहाँ Cl1 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो. इट इज़ बैलेंस्ड. इन द सेकेंड केस Al2O3, यह एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सोडियम 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. बहुत आसान होता है बैलेंसिंग करना. जस्ट नीड प्रैक्टिस. अगेन आई हैव रिटन हियर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज जस्ट रिटन हियर. ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? Any problem? If you have any problem you may message to me. Okay, now metal oxides generally are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. कुछ वाटर में डिजोल्व होकर एल्कलीज बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं. जैसे एग्जांपल के रूप में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जनरली सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. यू कैन सी हियर Na2O सॉलिड है, ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, वाटर में डिजोल्व होकर NaOH बनाता है. अब इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट नहीं किया. पोटेशियम ऑक्साइड उसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर लो, KOH बन जाएगा. एक और सॉल्यूशन एल्कलीज बन गया. बैलेंस कर लो, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो. जेट क्लियर? तो मेटल ऑक्साइड्स जो है वो इनसॉल्युबल जनरली होते हैं, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स. बट व्हेन मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स आर देयर दे विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. So now reactivity rate of metal towards oxygen. बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वी सी और व्हाट वी कैन से, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब जब डिफरेंट मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करते हैं मेटल्स के लिए, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पोटेशियम एंड सोडियम है, रिएक्ट विगरसली विथ एयर एंड दे कैच फायर. यही कारण है. और वाटर के साथ भी इनका रिएक्शन बहुत विगरसली होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. दूसरी बात है, सेकेंड पॉइंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड
ये ऐसे मेटल्स है कि व्हेन it reacts with oxygen they form their oxides and their oxides makes a thin layer of on its surface और जो थिन लेयर बनता है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है और फर्दर मेटल के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन को रोक देता है। तो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा कहा जाता है जैसे एल्यूमिनियम, उसमें कोरोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस ट्विस्टेड करके पूछे जाते हैं कि एल्यूमिनियम में कोरोजन क्यों नहीं होता, वाई पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। दीज आर द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू लर्न। आप इसको जरूर याद रखिएगा। सो नाउ थर्ड वन, कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन आपने देखा है बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन जाता है, जो कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन से याद करते हुए आ रहे हो। एंड एट द एंड, फोर्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन योर माइंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? ये सब जो 4 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। सो नाउ again there is a term which is given in the NCERT book, that is anodizing. What is anodizing? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक्चुअल में बच्चों क्या है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, अभी हमको जैसे हमने बताया कि एल्यूमिनियम अपने सरफेस पे क्या करता है, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, लेकिन वो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम ऐसा एक प्रोसेस डेवलप करें जिसमें कि आपको वो लेयर थिक हो जाए, तो हमारा एल्यूमिनियम क्या होगा, है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। सो द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, उसके कोरोजन को रोक सकता है। यानी एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिससे हम थिक लेयर क्रिएट करते हैं। किसके सरफेस पर? एल्यूमिनियम के सरफेस पे। ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग, ए से दोनों आता है ना, तो इसलिए याद रखना एल्यूमिनियम के लिए है। इसके लिए हम एक सेटअप तैयार करते हैं और जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है जिसके ऊपर हमें ये लेयर तैयार करना है, थिक लेयर बनाना है, उसको हम एनोड बनाते हैं। यू कैन सी हियर एनोड, दिस एनोड इज, और जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का जो मटेरियल आर्टिकल है, इट इज़ मेड एनोड। और इसके हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एसिड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। ओके जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ पर जाकर वो एल्युमिनियम की लेयर के साथ, सरफेस के एटम के साथ रिएक्ट करता है और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। आगे बात समझ में एनोडाइजिंग क्या है? ओके तो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को हाईली प्रोटेक्टिव बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है? नाउ सी हियर, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड विच गैस इज रिलीज्ड? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का बच्चों टेस्टिंग क्या है? इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। अगर कोई गैस रिलीज हो रहा हो, अगर वहाँ पे बर्निंग कैंडल आप लाओ, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। ओके सो नाउ मेटल अगर वाटर के साथ हो तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि फाइनली वी आर गेटिंग द बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों देयर आर 3 डिफरेंट कंडीशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कोल्ड वाटर, वार्म वाटर और हॉट वाटर और विथ स्टीम। अब मेटल किस तरह के वाटर से रिएक्ट करेगा? एक्चुअल में जो रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करते हैं, दैट रिएक्टिविटी सीरीज इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ एसिड, जिसको हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म में, एंड इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल टेक इट सेपरेटली टू डिस्कस। सो मेटल रिएक्ट्स विथ वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। इसके 2 मेटल्स हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। इट मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। क्या फॉर्मेशन होता है? देखो, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है,
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इतनी वॉलेंटली रिएक्शन होती है, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होता है, इट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, and the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen immediately catches fire। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तुरंत आग पकड़ लेता है। ऐसा ही सोडियम के साथ होता है। इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट नहीं किया, ना यू हैव टू कंप्लीट इन द सेम मैनर। KOH 2 से, चूंकि यहाँ भी 2 है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दो 2NaOH प्लस हाइड्रोजन, हीट एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, दैट इज पोटेशियम सोडियम, एंड दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड रिलीज हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन रिलीज होता है इट मे कैचेस फायर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस बात को ध्यान में रखना है। सो देयर इज वन मोर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट इज़ लेस वायलेंट, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा विच कैन कैच फायर। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखो उसको समझो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी लर्न और याद रखना है। ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इट डज नॉट कैचेस फायर, बट व्हाट हैपेंस, इट स्टिक्स विथ द सरफेस ऑफ मेटल। वो कैल्शियम के साथ मेटल के साथ स्टिक करता है। अब जब बच्चों मेटल के सरफेस के साथ गैसियस मॉलिक्यूल स्टिक कर जाए देन इट बिकम्स लाइटर, वो लाइटर हल्का हो जाता है और स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन होने पर क्यों फ्लोट करता है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, वो फायर कैच, व्हाई डज नॉट इट कैचेस फायर। तो सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर लेस वायलेंट रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो इट स्टिक टू द मेटेलिक सरफेस है, एंड दैट्स व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ऐसा ही सेम केस मैग्नीशियम के साथ होता है, बट यू शुड रिमेंबर मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वो एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीशियम वाटर 2H2O क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वा सॉल्यूशन है, लिख लो, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में। अब ये हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ ये जस्ट लाइक कैल्शियम, ये भी स्टिक कर जाता है मैग्नीशियम के सरफेस के साथ और वो फ्लोट करता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना मेटल्स फ्लोटिंग है, ये क्यों है, हाइड्रोजन जो गैस है वो उसके मेटेलिक सरफेस के साथ स्टिक कर गया। सो दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डिस्कशन किया, सेकंड यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि मेटल की रिएक्टिविटी विथ वाटर। एक बार फिर से रिपीट करो हमारे साथ, कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल आपको रिएक्ट करता है, यस सोडियम एंड पोटेशियम और कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम। वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस, बिकॉज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, नाउ देर आर सम मेटल्स विथ रिएक्ट विथ स्टीम, ना हॉट के साथ ना कोल्ड के साथ। इसका मतलब ऐसे मेटल उन दोनों के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होंगे। यानी अब आपने सोडियम पोटेशियम कैल्शियम पढ़ लिया, उसके बाद मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मेरे मोस्ट रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, और अब जिनका नाम आएगा वो मैग्नीशियम से भी लेस रिएक्टिव है। अब आपको समझ में आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनी होगी। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक do not react either with cold or hot water, they react with steam to form metal oxide and hydrogen। प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। अब तक आपने जो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ पढ़ा वहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या था, वहाँ प्रोडक्ट था मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वाज प्रोड्यूस्ड, बट हियर द मेन प्रोडक्ट इज मेटल ऑक्साइड नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड। सी द रिएक्शन, एल्यूमिनियम सॉलिड, वाटर in the gaseous G, here it is written G, why G, because we are reacting with steam, and steam is what, it is the vapor phase of water molecule। is it clear? प्रोडक्ट क्या बनता है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो हाइड्रोजन गैस इज द कॉमन वेदर द मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, बट द another product is different। in case of cold water hydroxide, metal hydroxide was formed,
In case of hot water, again metal hydroxide was formed, but in case of steam, metal reacts with steam to form metal oxide. आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया कि भाई एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक किससे कम रिएक्टिव होंगे, दे विल लेस रिएक्टिव देन द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब ये लीजिए कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो ये इन सब से रिएक्टिविटी में कम हो गई। तो बच्चों आप तो रिएक्टिविटी सीरीज अपने हिसाब से अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम पहले शुरू में आए जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तब मैग्नीशियम आया, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है, इन सबसे कम रिएक्टिव, और उसके बाद लास्ट में लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आ गए। बन गई रिएक्टिविटी सीरीज आपकी। वाटर के साथ रिएक्टिविटी के साथ ही आपने कंपेयर कर लिया कि भाई जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है हाईली रिएक्टिव है, जो हॉट वाटर के साथ है उसके रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है, और जो स्टीम के साथ है और कम रिएक्टिव है, जो रिएक्ट ही नहीं करता हो तो सबसे कम रिएक्टिव है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको क्लियरली? प्रोडक्ट याद रखना, स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। नाउ जस्ट सी हियर, दिस इज द टेबुलर फॉर मेटल रिएक्ट्स विथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, वायलेंटली विद कोल्ड, लेस वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। प्रोडक्ट क्या बन रहा है देख लो, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक स्टीम के साथ देखो उनके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये रिएक्टिव में नहीं है। तो आप सोच लीजिए रिएक्टिविटी से तो आपके यहीं तैयार होगी, उसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। और आपको डबल बेनिफिट है अगर आप इस तरीके से माइंड में अपने सेट कर लो कैसे मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कौन कौन से मेटल, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आसानी से बच्चों याद हो जाती है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एक आपके एनसीईआरटी बुक में, एज पर योर एनसीईआरटी बुक, दिस इज द सेटअप फॉर एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट सी हियर, इट इज आयरन स्टैंड and test tube. We have taken the zinc granules, dilute sulfuric acid is here, हाइड्रोजन गैस बबल यानी कि जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, वो गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है, बर्निंग कैंडल के साथ आप देखो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। टेस्टिंग हो गई। एक्चुअल में जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, इट गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन जब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वास्तव में मेटल क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। एक तरीके से समझ लो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस देयर, क्योंकि मेटल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं, हमने तो वाटर के साथ ही उस चीज़ को देख लिया, बट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। सो नाउ मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बन गैस रिलीज करता है। अगेन सी हियर, मेटल विथ एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Cl यहाँ पे है तो मेटल का क्लोराइड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4, SO4 है, सल्फेट बनेगा मेटल का। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3, तो नाइट्रेट बनेगा। क्लियर? लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, याद रखना, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? जनरली सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बनना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि HNO3 है बच्चों, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई करे, और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर का प्रोडक्शन करता है। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड बना सकता है? ये N2O बना सकता है, NO बना सकता है, NO2 का फॉर्मेशन कर सकता है। आगे बात समझ में? Again I am repeating, hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. Why? Because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to produce water and itself gets reduced to another nitrogen oxide. लेकिन दो ऐसे मेटल एक्सेप्शनल केसेस हियर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज,
जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ये पॉइंट बच्चों याद रखना। ये सब पॉइंट्स, 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट राइज होते हैं 1 मार्क्स में। विच मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इवन रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दोनों एम से स्टार्ट होता है, याद रखना। और अदर गैस मेटल के साथ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, एक्वारिजिया एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है रॉयल वाटर के लिए। एक्चुअली एक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, 2 concentrated acid, that is hydrochloric acid and concentrated nitric acid, and these 2 acids should be taken in the ratio 3:1। 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लो, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का लो, दोनों कंसनट्रेटेड लो, उसका जो मिक्सचर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया, अगर इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, देन इट कैन डिजॉल्व गोल्ड को भी डिजॉल्व कर सकता है। एक्वा इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिजॉल्व कर सकता है, ऐसी इसकी कैपेबिलिटी होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो सी इन द टैबुलर फॉर्म रिएक्टिविटी सीरीज हेयर, पोटेशियम सोडियम मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी क्रिएट हो गई, जो हमने ऑलरेडी सेपरेटली डिस्कस कर लिया। सो देयर इज नो नीड, इफ यू वांट देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट फ्रॉम हियर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ए। व्हाट आर द क्वेश्चंस? This is your homework questions, you have to do it. Thanks for watching, like and subscribe, and I hope today's session was useful. And in the next session, we'll discuss about reactivity series. So that's all for today's session, my dear students, and I hope whatsoever is taught today is clear to all of you. Again, I am going to revise all those points. Today's we discuss about the chemical properties, the reaction of metal with air, water and acid. In case of air, that was the important, the formation of oxide, and the most important point was amphoteric oxides. Just keep in your mind aluminum oxide and its reaction, वो बहुत important है. In case of water, that is the reaction with cold water, sodium and potassium and calcium. Why calcium floats on its surface? That's due to the sticking of hydrogen gas to the surface of calcium, and same the case with magnesium. Then reaction of metal with hot water, that is the magnesium. Some metals do not react with cold and hot water, they react with steam, aluminium, zinc and lead. And there are some metals which do not react with water at all, that is, we have studied that is lead, silver and gold, copper. And then reaction with acid, they form salt and hydrogen, but with nitric acid hydrogen is not produced because hydrogen is oxidized, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने अभी दिखाया इसको आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज द पार्ट 3rd। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, हैव अ थैंक यू।